हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ के डी बोरसे सर, बायो इन्फो चैनल से आपको गाइड करता हूँ। टुडेज लेक्चर वी लर्न 12 साइंस बायोलॉजी सिलेबस कंटेन चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर पर आप देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेन टीजर ऐसे 10 MCQ क्वेश्चन जो नीट एग्ज़ाम में पूछे जाते, MST CET में भी आपको देखने मिलेंगे और PMT जैसे एग्ज़ाम में ही आप देख सकते। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज फर्स्ट MCQ। द कलर बेस्ड contrasting triad in 7 contrasting pair studied by Mendel in pea plant, where Mendel study on pea plant. There are total 7 contrasting pair characters. Out of 7 contrasting pair triads, how many color based contrasting triads studied by Mendel? Is it 1 pair? Is it 2 pair? Is it 3 pair? Is it 4 pair? Correct option C. 3 pair contrasting triads are color based contrasting triads. देख सकते एक्सप्लेनेशन के साथ। Mendel studied 7 different contrasting characters, like number 1, first height, seed shape, seed color, seed coat color, pod shape, pod color, and position of flower. All these 7 contrasting character, 3 characters are colored base character like this: seed color, seed coat color, and pod color are color based contrasting characters studied by Mendel. So correct option is C. 3 colored base contrasting triads in 7 contrasting pairs studied by Mendel in pea plant. Number 2, select correct statement regarding honeybees. Honeybee including phylum Arthropoda. Honeybee population contain 3 types of individuals like queen, worker, and drone. Number 1, first statement: the queen bees and worker bees develop from fertilized egg are sexually females. Yes, this is the correct statement. The queen bees and worker bees develop from fertilized egg means queen and worker are individual member of honeybees. No doubt sexually females और डेवलप होते हैं फर्टिलाइज एग से. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट: मेल ड्रोन्स डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग. यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट. ड्रोन जो मेल कहलाते हैं हनी बी मेंबर्स में, डेवलप होता है ड्रोन पार्थेनोजेनेटिकली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग मीन्स ड्रोन्स और मेल्स हनी बी आर हैप्लॉइड कहलाते, क्योंकि वो पार्थेनोजेनेटिकली अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होते. दिस इज ऑल्सो correct statement. Number 3, queen bee feed upon royal jelly and worker bee feed upon bee breed. Yes, this is also correct statement. जो queen bee होती है वो फीड करती है रॉयल जेली फूड मटेरियल एंड वर्कर बी फीड करती है बी ब्रीड. Here noted all these 3 statements are correct about
honeybees seen here. Options: is it correct statement 1 and 2? Is it correct statement 1 and 3? Is it correct statement 2 and 3? And is it correct statement 1, 2 and 3? So all these statement correct means D option, 1, 2 and 3 statement are correct. MCQ number 3rd. A child has blood group O if the father has blood group A and mother has blood group B. Work out the genotype of parents. क्वेश्चन में चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O है, उस चाइल्ड के जो फादर और मदर है, फादर का ब्लड ग्रुप अगर A है और मदर का ब्लड ग्रुप अगर B है, तो एक्चुअल मदर फादर का ब्लड ग्रुप जेनोटाइप क्या हो सकता है? इज इट फादर ब्लड ग्रुप IA and mother blood group IB small I? Is it father blood group IA small I and mother blood group IB small I? Is it father blood group IA small I and mother blood group small I? Is it father blood group small I and mother blood group IB? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलेगा आपको B, फादर का ब्लड ग्रुप IA स्मॉल I और मदर का ब्लड ग्रुप IB स्मॉल I हो सकता है। तब चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O हो सकता है। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको पता है टोटल 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ए ब्लड ग्रुप अगर होता है तो जेनोटाइप या IA होता है या IA स्मॉल I होता है। अगर ब्लड ग्रुप बी होता है तो IB होता है और IB स्मॉल I होता है। अगर AB ब्लड ग्रुप होता है तो ब्लड ग्रुप IB होता है। अगर ब्लड ग्रुप O होता है तो स्मॉल I जेनोटाइप होता है। यहाँ पे चाइल्ड का ब्लड ग्रुप स्मॉल I मीन्स O ब्लड ग्रुप है। तो O ब्लड ग्रुप का चाइल्ड बियर करने वाले मीन्स प्रोड्यूस करने वाले जो मदर फादर होंगे, उनका ब्लड ग्रुप एक्चुअल कौन सा हो सकता है देखेंगे। अगर फादर का ब्लड ग्रुप IA स्मॉल I है और मदर का ब्लड ग्रुप IB स्मॉल I है, तो ये जो दो स्मॉल I दिख रहे हैं आपको, ये जो जेनोटाइप्स है, अगर ये दोनों स्मॉल I जेनोटाइप कंबाइन होंगे जाइगोट में, अगर ये दोनों कंबाइन होंगे तो पियरिंग होगा जेनोटाइप का स्मॉल I और जाइगोट से जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा उसका ब्लड ग्रुप हो सकता है O। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन B, फादर का ब्लड ग्रुप हो सकता है IA स्मॉल I और मदर का ब्लड ग्रुप हो सकता है IB स्मॉल I, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप हो सकता है O। तो B करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 4. Read the given statement and select correct option. Statement number 1. Mendel work Garden P. Pisum sativum. Yes, this is the correct statement. Second one is Garden P belong to family Malvaceae. This is the wrong statement because
Garden P. Pisum sativum is not belong to family Malvaceae. Garden P belong to family Fabaceae. So this statement is wrong statement and first statement is correct statement. First option, both 1 and 2 correct, and statement 2 is correct explanation of statement 1. This option is wrong because both statement are not correct statements. Second, both 1 and 2 correct, statement 2 is not the correct explanation of statement 1. This is also wrong statement because both statement are not correct. C option, statement 1 is correct and 2 is incorrect. Yes, this is the correct option. Statement 1 is correct and 2 is incorrect. You know, here statement first, Mendel work Garden P. Pisum sativum, correct statement. Garden P belong to family Malvaceae. This statement is wrong statement. So correct option C. देख सकते हैं डी ऑप्शन क्या है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. सो डी इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट. MCQ number 5. Marriage between color-blind man and a normal woman produce all carriers daughters and normal sons. Second, 50% carrier daughters and 50% normal daughters. Number third, C, all carrier offsprings. And number D, 50% color blind sons and 50% normal sons if marriage between a color blind man and normal woman produce. Is it first option correct? Is it second? Is it third? Or is it four? तो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है फर्स्ट ए, मैरिज बिटवीन अ कलर ब्लाइंड मैन एंड नॉर्मल वुमन प्रोड्यूस all carrier daughters and normal sons. This option is correct option. देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मैन एंड नॉर्मल वुमन प्रोड्यूस ऑल कैरियर डॉटर्स एंड नॉर्मल सन्स, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, color blind male person cross normal female. This is the parent of this question, color blind male person and normal female person. Its genotype is, जो color blind male person होता है, no doubt color blind gene is associated with X chromosome. So X chromosome with small c and Y is genotype of color blind male person. Normal female person, X associated with capital C, capital C. This is the normal female genotype and this one is color blind male genotype. अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कपल है तो प्रोड्यूस होने वाले जो चाइल्ड्स है कौन से हो सकते हैं, देख सकते हैं आप. फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे देख सकते हैं, कैरियर फीमेल दिख रहा आपको, 1X associated with capital C means normal gene and 1X associated with small c, XX
कैपिटल सी स्मॉल सी मीन्स कैरियर डॉटर। सेकेंड जो चाइल्ड प्रोड्यूस यहाँ पे दिख रहा है वो भी कैरियर डॉटर दिख रही है। और यहाँ पे जो मेल चाइल्ड सन प्रोड्यूस दिख रहा है वो एक्स कैपिटल सी वाई मीन्स ओ बी नॉर्मल सन दिख रहा है। और जो लास्ट यहाँ पे है एक्स कैपिटल सी वाई ओ बी आपको नॉर्मल सन दिख रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन, इफ मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मैन मीन्स मेल पर्सन and a normal woman produce offsprings, all carrier daughters, here all daughters are carrier and all sons are normal. So correct option A, all carrier daughters and normal sons if the marriage between colorblind man and normal woman. Hope that you understood everything. Now MCQ number 6. A tall true breeding garden pea plant, a tall true breeding garden pea plant is crossed with dwarf true breeding garden pea plant when F1 plant were self, the resulting genotype were in the ratio of, क्वेश्चन में आप देख सकते, अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट से क्रॉस होता है डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट। अगर ऐसा क्रॉसिंग से जो F1 प्लांट प्रोड्यूस होते तो F1 प्लांट से F1 प्लांट अगर क्रॉस किया मीन्स F1 प्लांट वेयर सेल्फ, द रिजल्टिंग जेनोटाइप वेयर इन द रेशो F1 प्लांट से अगर F1 प्लांट क्रॉस किए तो रिजल्टिंग जेनोटाइप का रेशो क्या हो सकता है? इज इट 1:2:1 मीन्स टॉल होमोजाइगस S2, टॉल हेटेरोजाइगस S2, डॉर्फ मीन्स टॉल होमोजाइगस 1, टॉल हेटेरोजाइगस 2, डॉर्फ 1। सेकेंड ऑप्शन 1:2:1 tall heterozygous, 2 also tall heterozygous and 1 dwarf. Third option 3:1 means 3 tall and 1 dwarf. Number D option 3:1 3 dwarf and 1 tall. तो करेक्ट ऑप्शन आपको देखने मिलेगा E, tall homozygous 1, tall heterozygous 2, dwarf 1 means 1:2:1। ए रिजल्टिंग जेनोटाइप आपको देखने मिलेगा अगर टॉल टू ब्रीडिंग गार्डन प्लांट से क्रॉस होता है डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट। जो फर्स्ट फिलियल F1 जनरेशन प्लांट होंगे अगर वो प्लांट का क्रॉसिंग होगा तो जेनोटाइप रिजल्टिंग मिलेगा 1:2:1। देख सकते एक्सप्लेनेशन के साथ। जेनोटाइप आपको पता है प्योर टॉल क्रॉस विथ प्योर डॉर्फ। अगर प्योर टॉल का जेनोटाइप देखा जाए तो आप देख सकते कैपिटल टी यहाँ पे। प्योर डॉर्फ का जेनोटाइप है स्मॉल टी। गैमेट अगर सेपरेट होंगे तो आपको पता है कैपिटल टी में से एक कैपिटल टी, स्मॉल टी में से एक स्मॉल टी। अगर ये दो गैमेट्स कॉम्बिनेशन होते तो F1 जनरेशन मिलता है।
हाइब्रिड मीन्स हीटेरोजाइगस टॉल, और वो हो सकता है फर्स्ट फिलियर और F1 जनरेशन। ऐसा अगर कॉम्बिनेशन है तो F1 जनरेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स हीटेरोजाइगस टॉल। अगर ये जो हीटेरोजाइगस टॉल प्लांट है उनमें क्रॉसिंग किया, F1 जनरेशन क्रॉस विथ F1 जनरेशन, तो आप देख सकते चेकर बोर्ड में गैमेट्स अटैच करेंगे। ये गैमेट्स यहाँ पे और ये गैमेट्स यहाँ पे नोटेड है। तो आफ्टर क्रॉसिंग फर्स्ट कैपिटल टी, ए फर्स्ट पेयर दिख रहा आपको, प्योर टॉल। Here crossing capital T small t, here also capital T small t, and this is the small t means जेनोटाइपिक रेशो आपको देखने मिलेगा। क्या हो सकता है जेनोटाइपिक रेशो? जेनोटाइपिक रेशो हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स 1 pure tall, 2 hybrid tall, and 1 dwarf. So the ratio of genotypic ratio of this question seen 1:2:1 means tall homozygous 1, tall heterozygous 2, and dwarf 1. So correct option of this question is 1:2:1 means tall homozygous 1, tall heterozygous 2, and dwarf 1. If true, tall breeding garden P cross with dwarf true breeding garden P, when F1 plant were self, the resulting genotype were 1:2:1 रेशो। ए ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। MCQ नंबर 7, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, यानी कि कॉलम ए मैच विथ कॉलम बी। कॉलम ए मीन्स कॉलम 1 में देख सकते हैं आप नॉर्मल वुमेन, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पिज्म सटाइवम। कॉलम सेकेंड में देख सकते हैं आप क्रोमोसोम नंबर्स 14, 45, 46, 47 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको 1, 2, 3, 4। आपको पता है नॉर्मल वुमेन अगर होंगी तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो सकते? 46 मीन्स ए combine with 3, 46 number of chromosome present in normal woman. You know 44s are autosome and 2 sex chromosome means total 46 chromosome आप देख सकते नॉर्मल वुमेन में। तो ए मैच विथ थर्ड। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम का जेनोटाइप देख सकते हैं आप, 44 आउटोसोम होते हैं और XXY सेक्स क्रोमोसोम होता है, मीन्स 1 सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा देख सकते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम इंडिविजुअल में। सो बी match with fourth means 47 because 44 are autosome and 3 sex chromosome means Klinefelter syndrome में देख सकते हैं आप 47 chromosome, so B match with fourth। टर्नर सिंड्रोम जेनोटाइप देख सकते हैं 44 plus X0 means only 1 X क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम पर्सन में देख सकते यानी कि 1 क्रोमोसोम लेस।
तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम सी मैच होता है 45 मीन्स सेकेंड से, बिकॉज वन सेक्स क्रोमोसोम इज लेस, इट्स जेनोटाइप इज 44 + X0, और डी पिजम सटाइवम में क्रोमोसोम हो सकते 14। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है देख सकते हैं आप। ए कंबाइन विथ 3, बी कंबाइन विथ क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम 4th। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन ए कंबाइन विथ 3, बी कंबाइन विथ 4th, सी कंबाइन विथ सेकेंड मीन्स टर्नर सिंड्रोम 45, एंड डी कंबाइन विथ 1 मीन्स 14 क्रोमोसोम। तो करेक्ट ऑप्शन आपको देखने मिलेगा ए 3, बी 4th, सी 2 और डी 1। दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 8. Which of the following cross will give tall and dwarf pea plant in same proportion? Which of following cross will give tall and dwarf pea plant in same proportion? Is it cross between pure tall, pure dwarf, cross between hybrid tall, pure dwarf, cross between pure tall, hybrid tall, cross between pure dwarf, pure। अगर टॉल और डॉर्फ का प्रपोर्शन प्रोडक्शन सेम हो सकता है तो क्रॉसिंग आपको देखने मिलेगा बी ऑप्शन। यहाँ पे हाइब्रिड टॉल मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो प्रोडक्शन प्लांट पी प्लांट का प्रपोर्शन सेम होगा, मीन्स जितने टॉल होंगे उतने डॉर्फ हो सकते। देख सकते एक्सप्लेनेशन के साथ बी कॉम्बिनेशन जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स हाइब्रिड टॉल, ये जेनोटाइप, और स्मॉल टी दिस जेनोटाइप नोटेड हियर एंड दिस जेनोटाइप नोटेड हियर। अगर क्रॉसिंग देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो प्रोडक्शन आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी 50% टॉल पॉपुलेशन देख सकते हैं यहाँ पे, और स्मॉल टी मीन्स डॉर पॉपुलेशन 50% देख सकते। तो टॉल एंड डार्फ पी प्लांट सेम प्रपोर्शन यहाँ पे देखने मिलेगा आपको। अगर क्रॉसिंग होगा हाइब्रिड टॉल से प्योर डॉर्फ तो टॉल और डॉर्फ पी प्लांट का सेम प्रपोर्शन देखने मिलेगा। जितने टॉल होंगे उतने डॉर्फ होंगे, यहाँ पे जितने टॉल है उतने डॉर्फ देखने मिलेंगे। MCQ नंबर 9, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। इन कॉलम 1 फीमेल बर्ड जेनोटाइप, कॉलम बी ह्यूमन फीमेल जेनोटाइप, फीमेल हनी बी हीमोफिलिक फीमेल पर्सन,
कॉलम सेकेंड में देख सकते हैं आप 44 प्लस XX जेनोटाइप, X small h 2n plus ZW 2n plus 32. Column 1 contain combine with column 2 genotypes. Is it फर्स्ट सेकंड थर्ड? ये जो 4 ऑप्शंस है यहाँ पे, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट मैचिंग सीक्वेंस हो सकता है? देख सकते हैं आप यहाँ पे फीमेल बर्ड जेनोटाइप, ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं इसमें से फीमेल बर्ड का जेनोटाइप 2n प्लस ZW, यानी कि यहाँ पे ZW ये सेक्स क्रोमोसोम बर्ड में होते, फीमेल में, जो अपोजिट हो सकते ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बीइंग का जो मेल पर्सन होता है वो हिटेरोजाइगस होता है XY, बर्ड में फीमेल पर्सन हिटेरोजाइगस है तो ZW 2n plus ZW means diploid female bird genotype. E combined with 3. Human female genotype, yes, 44 plus XX means B combined with 1. Female honeybee, yes, 2n plus 32. हॉनीबी का जो डिप्लॉइड सेल होता है उसमें क्रोमोसोम देख सकते हैं 32 इन नंबर, सो C combined with 4th. एंड D हीमोफिलिक फीमेल का जेनोटाइप हो सकता है X small h जो हीमोफिलिक जीन होता है X क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होता है, तो X small h ये जो जेनोटाइप है ये फीमेल हीमोफिलिक पर्सन का जेनोटाइप है, तो D मैच होता है 2 से। तो करेक्ट सीक्वेंस आपको देखने मिलेगा A फीमेल बर्ड जेनोटाइप थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड है, थर्ड में भी थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ में भी थर्ड ऑप्शन है। ह्यूमन फीमेल जेनोटाइप 1 मीन्स B मैच विथ 1 44 प्लस XX, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-4 में B 1-1 दिख रहा है आपको। थर्ड ऑप्शन थर्ड C से कंबाइन होता है फीमेल हॉनी बी, इट्स जेनोटाइप फोर्थ मैच होता है, तो फोर्थ ऑप्शन में आप देख सकते फोर्थ ऑप्शन C कंबाइन विथ 4 और D कंबाइन विथ 2 मीन्स हीमोफिलिक फीमेल X small h, तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ A3 B1 C fourth and D second. Last MCQ question number 10. If monohybrid cross 120 plants are obtained, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से अगर 120 प्लांट मिलते हैं तो रेशियो ऑफ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस विल बी, इज इट 40-80, इज इट 60-60, इज इट 20:100, इज इट 10:110। तो करेक्ट ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 120 प्लांट ऑब्टेन्ड होते हैं तो रेशियो आपको देखने मिलेगा होमोजाइगस 60 हो सकते हैं तो हेटेरोजाइगस 60 हो सकते, तो B 60:60 करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। प्योर डॉर्फ एग्जाम्पल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नो डाउट
कैपिटल टी स्मॉल टी F1 हाइब्रिड। अगर F1 हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो जीनोटाइपिक रेशो आपको मिलता है कैपिटल टी होमोजाइगस, स्मॉल टी also homozygous, means one homozygous capital T, one also homozygous small t, and here two heterozygous capital T small t, means जितने homozygous है उतने heterozygous होंगे। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 120 प्लांट प्रोड्यूस होते ऑब्टेन होते हैं तो रेशियो ऑफ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस बी ऑप्शन 60 homozygous and 60 heterozygous seen here। कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी ये दोनों होमोजाइगस है तो 1 + 1 2 एंड दिस इज द हेटेरोजाइगस 2, मीन्स टोटल 60 होमोजाइगस होंगे जिसमें 30 टॉल होमोजाइगस 30 डॉर्फ होमोजाइगस होंगे और रिमेनिंग 60 हेटेरोजाइगस होंगे। तो रेशो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस का 60:60। B option is correct। In monohybrid cross produce 120 plant are obtained, the ratio homozygous and heterozygous B 60:60। Hope that you understood everything। अब तक हमने देखे टोटल 10 MCQs जो ब्रेन टीजर कहलाते हैं और ऐसे MCQ खास करके नीट एग्जाम में पूछे जाते, MST CT में भी देखने मिलेंगे और PMT जैसे एग्जाम में भी आप देख सकते। अगर आपको आगे के चैप्टर का भी ऐसा लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। If you like the video, then you can subscribe my BioInfo YouTube channel. Tap the bell icon and like the video. If any doubt about today's lecture, mention in comment box. Thank you.